جیسا کہ آپ سبھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ آج تاریخی شہر چتردرگا میں ایک عظیم الشان مشاعرے کا اہتمام ہونے جا رہا ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ چتردرگا میں اس مشاعرے کا اہتمام آپ کے علاقے کی ایک معروف ادبی شخصیت جو کرناٹک اردو اکیڈمی کے رکن بھی ہیں، میری مراد ڈاکٹر داؤد محسن صاحب سے ہے، ان کی مخلصانہ کاوشوں کے نتیجے میں آج چتردرگا میں یہ مشاعرہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آج مشاعرہ منعقد ہونے جا رہا ہے، اس میں ریاست بھر سے مختلف معروف اور نامور شعراء اپنے کلام بلاغت سے ہمیں مستفیض کریں گے، اور یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ جو مشاعرہ ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جس میں مختصر ایک افتتاحی تقریب کا اہتمام ہوگا اور اس کے فوراً بعد مشاعرے کا آغاز ہوگا۔ افتتاحی تقریب کی صدارت اگرچہ کرناٹک اردو اکیڈمی کے صدر عالی انعقاد مولانا مفتی محمد علی قاری صاحب کے ذمہ تھی، مگر چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر وہ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہیں، تو لہٰذا افتتاحی اجلاس کی صدارت معزز رکن اکیڈمی ڈاکٹر داؤد محسن فرمائیں گے، جو اس مشاعرے کے کنوینر بھی ہیں۔ اس کے بعد مشاعرہ منعقد ہوگا اور مشاعرے کی صدارت ہماری ریاست کے نامور شاعر ماہر تعلیم پروفیسر خلیل ناظم سربراہ صاحب فرمائیں گے۔ تو افتتاحی تقریب کے لیے سب سے پہلے میں شاہنشین پر مدعو کرتا ہوں آج کی اس افتتاحی تقریب کے صدر ڈاکٹر داؤد محسن صاحب کو کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان کرناٹک اردو اکیڈمی کے ایک اور معزز رکن علی جناب ظفر محی الدین صاحب بھی موجود ہیں۔ ظفر محی الدین صاحب تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ ریاست کرناٹک ہی نہیں بلکہ جنوبی ہند میں اردو ڈرامے کے حوالے سے اپنی ایک منفرد شناخت رکھتے ہیں۔ وہ بے مثال اداکار ہیں، ہدایت کار، اور مختلف ٹیلی سیریلز کے لیے انہوں نے اپنی آواز دی ہے۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ حکومت کرناٹک ان کی ان خدمات میں 2025 کے راجیہ وسائے ایوارڈ سے انہیں سرفراز کیا تھا۔ میں بڑی قدر کے ساتھ انہیں شاہنشین پر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ مشاعرے کی صدارت پروفیسر ڈاکٹر خلیل ناظم سربراہ صاحب فرمائیں گے۔ آپ ماہر تعلیم ہیں اور اردو تعلیم سے، اردو تحقیق سے آپ کا بہت ہی دیرینہ وابستگی رہی ہے آپ کی، اور ایک شاعر کی حیثیت سے آپ اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ اور ان کے تعلق میں یہ بات یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے کرناٹک اردو اکیڈمی کے صدر کی حیثیت سے بھی نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ آج کی اس افتتاحی تقریب میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ شاہنشین پر تشریف لائیں۔ ڈاکٹر خلیل ناظم سربراہ سے ہمارے درمیان شہر چتردرگا کی اور کئی معزز شخصیتیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں جناب یم کے تاجپیر صاحب چیئرمین KUDU سے التمس ہوں کہ وہ ایسے انجمن ترقی اردو ہند شاخ چتردرگا کے صدر جناب اقبال احمد صاحب سے بھی میری خواہش ہے کہ وہ شاہنشین پر تشریف لائیں۔ ہمارے عزیز دوست اردو کی علمی اور ادبی شخصیت ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب جو گورنمنٹ PU کالج میں پرنسپل کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں، میں ان سے بھی خواہش کرتا ہوں کہ وہ شاہنشین پر تشریف لائیں۔ ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب ہمارے درمیان صدر حضرت غریب شاہ ولی درگاہ محترم جناب عبداللہ اور بابا جان پٹیل صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں ان سے بھی خواہش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ افتتاحی تقریب کا باقاعدہ آغاز
قرأت کلام پاک سے ہوگا. افتتاحی تقریب کا آغاز قرأت کلام پاک سے ہوگا. میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ مولانا مفتی فخر عالم صاحب امام و خطیب حلقہ مسجد سے ملتمس ہوں کہ وہ قرأت کلام پاک سے اس افتتاحی تقریب کا آغاز کریں. مولانا مفتی فخر عالم صاحب کہ صدر جناب محمد عبداللہ بھائی صاحب سے بھی میری خواہش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. قرأت کلام پاک کے لیے میں مولانا مفتی فخر عالم صاحب یہ جو ہے اسے کھڑے کر کے محترم و مکرم اسٹیج پر رونق افروز ریاست کرناٹک کے مشہور و معروف اردو ادب کے شعراء کرام، ارباب علم و ادب، دانشوران، محفل میں تشریف فرما تمام برادران اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، جملہ حاضرین جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بہت بڑا شکر و احسان کہ ہم سب کو اللہ نے اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے سب سے افضل و اعلیٰ کتاب قرآن پاک عطا فرمایا. قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جس کا آغاز تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے ہو اللہ تعالیٰ اس کام میں کامیابی عطا فرماتا ہے. بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے شہر چتردرگا میں، بالخصوص ریاست کرناٹکا اور بالعموم ملک ہندوستان کے مشہور و معروف یہ دانشوران آج کے اس کرناٹک اردو اکیڈمک سے منسوب اس مشاعرے کے پروگرام میں تشریف فرما ہے. سب سے پہلے میں ان حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سارے حضرات کو ہمیشہ شاد و آباد عطا فرمائے. شاعر کہتا ہے صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، میناریں گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر یہودی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے وہ قرآن میں پڑھو. اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے ہونے جا رہا ہے اور جب قرآن کی تلاوت ہو خاموش رہنا واجب ہے اور کان لگا کر کے سننا ضروری ہے. لہٰذا آپ حضرات مکمل ادب و احترام کے ساتھ تلاوت کلام اللہ کو سماعت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی ظلال وعیون.
وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد باری آتی ہے نعت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، جو میں پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب شبیر اشرفی خطیب و امام درگاہ مسجد بڑا مکان۔ آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کچھ اشعار سماعت کر لیں، سوالہ تشریف رکھتے ہیں۔ کہ بندے عارف میں عارفہ کا مزہ ملتا ہے۔ آواز تھوڑی ہماری جو ہے بہت گڑبڑ ہے، اس لیے میں ترنم میں نہیں پڑھ سکتا۔ اہل علم کا توجہ میں چاہتا ہوں کہ بزم عارف میں عارفہ کا مزہ ملتا ہے۔ عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو۔ تھوڑا شعر تھوڑا بہت گہرے ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ بزم عارف میں عارفہ کا مزہ ملتا ہے، اور جستجو گر ہو تو بندے کو خدا ملتا ہے۔ بزم عارف میں عارفہ کا مزہ ملتا ہے، جستجو گر ہے تو بندے کو خدا ملتا ہے۔ جستجو گر ہو تو بندے کو خدا ملتا ہے۔ اور اہل معرفت کا شعر ہے کہ راہ فنا سے نکل راہ بقا میں آ،
راہ فنا سے نکل راہ بقا میں آ، یعنی قطرے ہی میں دریا کا پتہ ملتا ہے، یعنی قطرے میں ہی دریا کا پتہ ملتا ہے۔ اور یار کی دید نہیں جس کو وہی ہے گمراہ، یار کی دید نہیں جس کو وہی ہے گمراہ، دید والے کو بہرحال خدا ملتا ہے، دید والے کو بہرحال خدا ملتا ہے۔ اور بزم فقراء میں گیا علم لدنی پایا، بزم فقراء میں گیا علم لدنی پایا، اس کا صدقہ ہے ہر جا صلہ ملتا ہے، اس کا صدقہ ہے ہر جا صلہ ملتا ہے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تلاش یار کے پہلے تلاش کر کامل، تلاش یار معرفت کے شعر ہیں کہ تلاش یار کے پہلے تلاش کر کامل، پیر کامل تجھے ملتے ہی خدا ملتا ہے، پیر کامل تجھے ملتے ہی خدا ملتا ہے۔ اور بحر رحمت میں لگا گوتے پہ گوتا ہر دم، کوئی فائدہ نہیں، بحر رحمت میں لگا گوتے پہ گوتا ہر دم، پھر یقیناً تجھے دنیا میں خدا ملتا ہے، پھر یقیناً تجھے دنیا میں خدا ملتا ہے، جستجو گر ہو تو بندے کو خدا ملتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دو شعر الفاظ بے شمار ہیں، الفاظ بے شمار ہیں، لہجے الگ الگ ہیں، الفاظ بے شمار ہیں، لہجے الگ الگ، سب کو ملے نبی سے تحفے الگ الگ، صداقت عدالت شجاعت سب کو ملے رسول سے تحفے الگ الگ۔ اور حضور نے خرید لیا خیریت ہوئی، سرکار نے خرید لیا خیریت ہوئی، ورنہ ہم لوگ مفت میں بکتے الگ الگ۔ السلام علیکم۔ تو میں بہت اچھے انداز میں اشعار جو نبی شریف جو پیش کیے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اب جو ہے
جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کا یہ مشاعرہ کرناٹک اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام کرناٹک کے تاریخی شہر چتردرگا میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور چتردرگا کی جو سرزمین ہے وہ ہمیشہ سے اردو دوست رہی ہے۔ یہاں ہر دور میں مختلف شعراء و ادبا نے علم و ادب کی شمعیں روشن کی ہیں۔ آج بھی اس شہر میں کئی ایسے نام موجود ہیں جنہوں نے اردو زبان و ادب سے اپنی وابستگی کے ذریعے اردو زبان سے محبت کا ثبوت دیا ہے۔ اس تاریخی شہر میں کرناٹک اردو اکیڈمی کی جانب سے معزز رکن ڈاکٹر داؤد محسن صاحب نے مشاعرے کے اہتمام کا فیصلہ کیا، تو آج ہم یہاں ایک مشاعرہ سننے کے لیے جمع ہے۔ حاضرین باترکین، آپ اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ کرناٹک اردو اکیڈمی کا قیام مارچ 2023 میں عمل میں آیا تھا، جب کرناٹک میں کانگریس کی نئی حکومت بنتی ہے۔ اس سے قبل لگ بھگ 4 سال کرناٹک اردو اکیڈمی تعطل کا شکار رہی، یعنی اکیڈمی کی تشکیلی عمل میں نہیں آئی تھی۔ کانگریس حکومت نے محترم BZ ضمیر احمد صاحب جو وزیر اقلیتی بہبود ہیں اور جن کے تحت کرناٹک اردو اکیڈمی کام کرتی ہے، ان کی ذاتی دلچسپی کے نتیجے میں کرناٹک اردو اکیڈمی کی تشکیل عمل میں آئی مارچ 2023 میں، اور پھر اس اکیڈمی کے لیے صدر کا انتخاب ہوا، تو ایک بہت ہی متحرک شخصیت، علمی اور مذہبی شخصیت مولانا مفتی محمد علی قاضی صاحب کا انتخاب عمل میں آیا، اور 2023 مارچ کے بعد سے کرناٹک 2024 کے بعد سے آپ دیکھتے ہیں کہ کرناٹک اردو اکیڈمی جناب BZ ضمیر احمد صاحب عزت مآب وزیر برائے اقلیتی بہبود کی رہنمائی میں اور صدر اکیڈمی مولانا مفتی محمد علی قاضی صاحب کی قیادت میں بہت ہی فعالیت کا ثبوت دے رہی ہے۔ ریاست بھر میں چھوٹے بڑے ہر شہر میں اردو کی علمی ادبی مجلسیں سجائی جا رہی ہیں، مشاعرے کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے، اور اکیڈمی کے تحت کئی ایسے منصوبے روپ عمل لائے جا رہے ہیں جو اردو زبان و ادب کی ترویج و ترقی میں معاونت کرتے ہیں۔ کرناٹک اردو اکیڈمی صرف مشاعروں کا اور ادبی جلسوں کا یہ اہتمام نہیں کرتی، بلکہ کئی ایسے منصوبے ہیں جن میں ادیبوں اور شاعروں کی کتابوں کی اشاعت کا منصوبہ تھا۔ اس منصوبے کے تحت ریاست کے لگ بھگ 63 ادیبوں اور شاعروں کی کتابیں شائع ہونے جا رہی ہیں۔ صحافیوں کے لیے، اردو صحافیوں کے لیے اکیڈمی نے تربیتی پروگرام منعقد کیے۔ ایسے ادبا و شعراء جو اکیڈمی کی مالی امداد کے مستحق تھے، انہیں مالی عنایت سے نوازا گیا، اور اکیڈمی کا سب سے مشہور جو پروگرام رہا ہے جو اردو کی بقا کا ضامن ہے، وہ ہے لرن اردو ان 30 days۔ اکیڈمی نے ایسا جامع نصاب مرتب کیا ہے جس کے ذریعے ایسے افراد جو اردو زبان سے واقف نہیں ہیں، وہ صرف 30 دنوں میں اردو سیکھ سکتے ہیں۔ اس اسکیم کا بہت ہی کامیابی کے ساتھ بنگلور میں انعقاد کیا گیا، اور کئی بیچز اس کورس کے آئے ہیں جن میں آپ دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں ایسے افراد ہیں جو اردو سے واقف نہیں ہیں، انہیں اردو بولنا لکھنا اور پڑھنا سکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی ضلعی سطح کے سیمینارز منعقد ہوئے جہاں پر اس علاقے کی ادبی تاریخ کو محفوظ کرنے کی کوششیں کی گئی۔ اس طرح سے کئی الگ الگ طرح کے پروگرام جناب ظفر محی الدین صاحب موجود ہیں، تو اردو ڈرامے کے فروغ کی سمت میں کئی ڈرامے آپ نے اکیڈمی کے زیر اہتمام بنگلور اور میسور میں آپ نے اس کا نمائش کی، اس کو پریزنٹ کیا۔ تو اس طرح سے اکیڈمی بہت ہی فعالیت کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور ظاہر ہے کرناٹک اردو اکیڈمی کے جو اراکین ہیں یہ صرف انہی کی محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ریاست کرناٹک کے تمام محبان اردو اکیڈمی کے ساتھ ہیں، اور
एकेडमी के ये जो भी मुसलसल काम हो रहे हैं उनमें उनकी मामलत ज़रूर शामिल है। तो बहरहाल मुशायरे के शुरू होने में पहले से दाखिल हो चुकी है। मैं शायरों के कलाम और आपकी समातों के दरमियान ज़्यादा हायल नहीं चाहता, तो मैं सबसे पहले हमारे दरमियान जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हैं उनका मैं दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब M.K. ताजगीर साहब जो चेयरमैन चित्रदुर्गा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं। उनका मैं आज की इस महफिल में दिली खैर मक़दम करता हूँ जनाब M.K. ताजगीर साहब। और मैं डॉक्टर दाऊद मोहसिन साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि उनकी खिदमत में हदिया तहनीत पेश करें। और कौन कौन है इसमें? जो हैं वो बताइए। ये इकबाल अहमद, डॉक्टर शबीर अहमद, कुल में है ना दूसरे नहीं जिधर की जो ठीक करी वो मैं सदर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाह चित्रदुर्गा जनाब इकबाल अहमद साहब का आज के इफ्तिताई इजलास में दिली खैर करता हूँ और रुकन अकादमी डॉक्टर दाऊद मोहसिन साहब का ख्वाहिश करता हूँ कि वो उनकी खिदमत में शाल और फूल का नजराना पेश करें। उर्दू ज़ुबान अदब और तालीम के हवाले से शहर चित्रदुर्गा की जाने वाली शख्सियत डॉक्टर शकील अहमद खान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। वो अरसे दराज तक उर्दू तदरीस से वाबस्ता रहे, अब प्रिंसिपल की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं जनाब डॉक्टर दाऊद मोहसिन साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो उनकी गुलकोशी फरमाएँ। ये हमारी खुश बाकी है कि हमारे दरमियान जनाब अब्दुल्ला उर्फ बाबालाल पटेल सदर हज़रत गरीब शाह वली दरगाह चितापुर भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनकी खिदमत में तहनियत पेश की जा रही है। जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला पटेल दादापीर साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं आज की इस इब्तिदाई तकरीब में। मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि वो तहनीत कबूल करें। अब्दुल्ला पटेल दादापीर साहब, अब्दुल्ला पटेल दादापीर साहब। चित्रदुर्गा के नामवर खानदान जनाब एस सैयद साले साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनकी शानपोशी और गुलपोशी के लिए दरख्वास्त करता हूँ। अकादमी के मौजूद रबन राज्य साहबाड़ी मोहतरम जफर महदीन साहब शहनशीन पर अफरोज़ हैं। मैं डॉक्टर दाऊद मोहसिन साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि उनकी खिदमत में शाल और फूल का नजराना पेश करें। और भी रह गए जनाब जफर महदीन साहब ड्रामे की बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत हैं। आप शुमाली कर्नाटक के रायचूर से आप वाबस्ता हैं। आपकी तालीम क्या बोले? इनको दो इनको है ना, इनको दोनों को लगे। अच्छा, मैं डॉक्टर दाऊद मोहसिन साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो मौलाना मुफ्ती फ़ख्र आलम साहब इमाम खतीब
मक्का मस्जिद की गुलपोशी फरमाएँ। मौलाना मुफ्ती फ़ाज़िल इमाम खतीब मक्का मस्जिद। अभी आपने मौलाना शकीर शफी साहब से नाज़े शरीफ समाज के लिए उनकी गुलपोशी की जा रही है। मौलाना शकीर शफी साहब इमाम खतीब दरगाह मस्जिद बड़ा मक्का। जनाब ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब जो कर्नाटक उर्दू अकेडमी के मौजूद रुकन हैं, ये कर्नाटक उर्दू अकेडमी के लिए भी फ़ख्र की बात है और तमाम अहले उर्दू के लिए भी फ़ख्र की बात है कि जनाब ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब को हुकूमत कर्नाटक ने 2025 के अपने सबसे आला अवार्ड राज्योत्सव अवार्ड से सरफराज किया है। जनाब ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब का आबाई वतन रायचूर है, मगर तालिब इल्म के ज़माने से वो बेंगलोर में मुक़ीम हैं। जहाँ तक आपकी पढ़ाई का ताल्लुक़ है, आपने विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से आपने बीटेक की डिग्री हासिल की। ये बहुत ही अहम बात जो आम तौर से हम जनाब ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब के बारे में नहीं जानते, वो ये है कि बीटेक करने के बाद आपका तखर्रुज यूपीएससी से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए हुकूमत हिंद के फ़िज़ाइया में आपका जो है तखर्रुज हुआ था एज ए डिप्टी आर्किटेक्ट के। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि यूपीएससी से आपका तखर्रुज हो और हिंदुस्तान के फ़िज़ाइया फौज में, मगर चूँकि आपके मिजाज में जो मुलाजिमत के किसी के मातहत काम करना आपके मिजाज के ख़िलाफ़ था, तो आपने उस अहम मुलाजिमत से मुस्तफ़ी हुए और फिर आपने अपना एक अलग एक इदारा कायम किया जो तामीरात से मुताल्लिक़ था और उसमें आपने बड़ा नाम कमाया। और उसके साथ साथ आपका जो तो आप ड्रामे से वाबस्ता हुए, ड्रामे से आपकी दिलचस्पी तारीख़ इल्म के ज़माने में से थी। कई बेंगलोर के ड्रामों के थिएटर से आप जुड़े रहे। उससे पहले आपने अपनी जो खूबसूरत और मौसर आवाज़ है उसका इस्तेमाल किया। कई इश्तिहारात और कई टेली फिल्मों के लिए आपने अपनी सदाकारी की है, आवाज़ की है। उसके बाद अदाकार की हैसियत से, हिदायतकार की हैसियत से आपने बहुत ही नाम कमाया है। आपका एक सबसे मशहूर जो ड्रामा है वो ज़िक्र गालिब के नाम से आपने मुख्तलिफ़ चेहरों में पेश किया है। एक और बात आपके बारे में बता दूँ कि आपको मुख्तलिफ़ फिल्मी शख्सियतों के साथ काम करने का मौका मिला है, जिसमें ये नाम मैं बताऊँगा आपको, गिरीश कर्नाड। आपके साथ बहुत आपकी वाबस्तगी रही और गिरीश कर्नाड का जो लिखा हुआ ड्रामा था इंग्लिश में द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, आपने ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब ने न सिर्फ उसका उर्दू तर्जुमा किया बल्कि उस पर आप उस ड्रामे को आपने स्टेज पर भी पेश किया था। तो ये वैसे उनकी जो खिदमत रही हैं ड्रामे के मैदान में वो बयान के लिए जल्द चाहती हैं। मुख्तसर ये कि ड्रामे के मैदान में, हिदायतकारी के मैदान में, अदाकारी के मैदान में आपकी नुमायाँ खिदमत का एतराफ़ यकीनन हुकूमत कर्नाटक को करना चाहिए था और बहुत पहले होना चाहिए था, मगर 2025 में ये नाम आपके खिदमत में पेश किया गया। तो मैं अपनी जानिब से और तमाम हाज़रीन इजलास की जानिब से उनकी खिदमत में दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के इस मुशायरे की सदारत हमारे दरमियान मौजूद बहुत ही मौजूद और मोतबर शख्सियत रियासत कर्नाटक की, जो कर्नाटक उर्दू अकेडमी के सदर की हैसियत से भी बहुत ही नुमायाँ खिदमत आपने अंजाम दी हैं। अदीब हैं, मुहर्रिख़ हैं, मौल्लिम हैं, मिसाली उस्ताद हैं और बहुत ही अच्छे शायर हैं जो आज की इस शेर शायरी की सदारत करेंगे। मेरी मुराद प्रोफेसर खदीर नाज़िम सरगुरो साहब से है, उनकी खिदमत में तहनीत पेश की जा रही है। मैं दाऊद मोहसिन साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो उनकी खिदमत में शाल पोशी, गुल पोशी और तहनीत का नजराना पेश करें। डॉक्टर खदीर नाज़िम सरगुरो साहब।
मज़द हाज़िरीन इकराम, नाशुक्री होगी मगर मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा ना करूँ जिनकी मौजूदगी आज के इस मुशायरे की कामयाबी की ज़ामिन है। मैं आप तमाम का आज के इस मुशायरे की महफिल में दिली खैर मक़दम करता हूँ। हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो अहबाब हमारे साथ मौजूद हैं उनका भी आज की इस मजलिस में दिली खैर मक़दम करता हूँ और मैं डाइस पर मौजूद तमाम मेहमानान गिरामी से अदब व एहतराम के साथ इल्तिमास करता हूँ कि वो कौले की आज़ादी के ज़रिए आज के इस मुशायरे का इफ्तिताह फरमाएँ। तमाम हाज़िरीन इजलास इफ्तिताह करें। सामने देखिए। कौले की आज़ादी के ज़रिए नीचे रखो, एक चेयर के ज़रिए ये होने आ जाइए। हाँ नहीं कर दी आप कर दी एक मिनट क्यों ना नहीं सर हाँ जी जी मैं हूँ। जरा सामने से ले, जरा सामने से ले। नीचे गिरना ये ग्रुप ले लीजिए बस सर। ग्रुप ले निकालो। अब हाँ ओके सर बैठे सर हाँ चलिए। सदारती आपकी दाहिने हाथ तो करना है। अरे आप बैठिए अनीस सिद्दीकी अनिल सिद्दीक साहब कर्नाटक उर्दू अकादमी गुलबर्गा जिले के हमारे सदस्य को जो गुलशन किया है जनाब अनिल सिद्दीक जनाब अनीस सिद्दीकी साहब रुकन उर्दू कर्नाटक उर्दू अकादमी गुलबर्गा ज़िला। सर एक मिनट आ जाए सर। दाऊद मोहसिन साहब को ज़रा तारुफ करा के वैसे उनको गुलपश आप हाँ जी तारुफ कीजिए आप। आज के इस मुशायरे और इब्तिदाई तकरीर के रूह रवा जिनकी मुखलिसाना काविशों के नतीजे में शबाना रोज़ मेहनतों के नतीजे में आज इस मुशायरे का एहतमाम मुमकिन हो चुका है। जो आज के इस इब्तिदाई जलसे की सदारत कर रहे हैं कर्नाटक उर्दू अकादमी के बहुत ही फ़ाल बहुत ही एक्टिव रुकन हैं। इसके अलावा आपकी पहचान एक शायर अदीब और मुहक्किक की हैसियत से कौमी सतह पर आपकी पहचान और शनाख्त है। आपकी शेरी मजमे आपकी तनकीद की कई किताबें और आपके बाद में तक़दीसी अदब में भी बड़ा काम किया है और आज के इजलास की सदारत फरमा रहे हैं। मैं उनकी खिदमत में शाल पोशी और फूलों का नजराना और तहनीत पेश करने के लिए मैं जनाब ज़फ़र मेहदी साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि उनकी खिदमत में तहनीत पेश करें। डॉक्टर दाऊद मोहसिन साहब आ जाइए नहीं बैठे अंदर उसमें बैठी सर अब हो गया ना उतरना नीचे उधर ना 2 मिनट से सदर हाँ सदर सदर बोलो बोलो
افتتاحی تقریب اپنے آخری مرحلے پر پہنچتی ہے. میں افتتاحی تقریب کے صدر جناب ڈاکٹر داؤد محسن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے صدارتی کلمات سے نوازیں. ڈاکٹر داؤد محسن صاحب کہ وہ اپنے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ظفر محی الدین صاحب. آپ سب کی خدمت میں میرا آداب. نیکسٹ انہوں نے نیکسٹ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب سے سدھرامیا صاحب کی سرکار آئی ہے کرناٹک میں جناب ڈی کے شیو کمار اور عزت مان زمین احمد صاحب اردو اکیڈمی کی تشکیل ہوئے 2 سال ہونے کو اور حکومت کرناٹک نے بہت ہی اچھی اکیڈمی تشکیل کی ہے جہاں ایک سے بڑھ کر ایک عربی کو جو آج ہمارے ہیں ڈاکٹر انیس صدیقی صاحب, ڈاکٹر داؤد محسن صاحب, یہ اراکین ہے کرناٹک اردو اکیڈمی. اور چتردرگا کے حضرات میں ایک کا نام نہیں لوں گا کیونکہ بہت کم ہے. اور ہمارے سابق صدر اردو اکیڈمی جناب ڈاکٹر سروج صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کی صدارت کر رہے ہیں. بڑی خوشی کہ کرناٹک اردو اکیڈمی کے صدر جن کی سرپرستی میں جناب محمد علی مفتی صاحب جو ہے کسی وجہ سے آ نہیں سکے, ان کی سرپرستی میں اردو اکیڈمی بہت اچھے کام کر رہی ہے. چیئرمین صاحب مفتی صاحب کی سرپرستی میں بہت اچھے کام کر رہی ہیں. مشاعرے, مباحثے اور نظامت کے کلاسز اور اردو سیکھنے کا کرناٹکا اردو اکیڈمی بہت سے کام کر رہی ہے. میں ان کا ایک نہیں کہوں گا, یہاں تک کہ ڈرامے بھی, لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر داؤد محسن صاحب کو جو ایک شاعر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں اور ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, کہ انہوں نے نہ صرف چتردرگا بلکہ حال ہی میں داونگیرے میں بھی ایک بہت ہی اچھا پروگرام انہوں نے منعقد کیا تھا اور آج یہاں اس تاریخی شہر میں یہ مشاعرہ کر رہے ہیں. میری دلی مبارکباد ان کے ساتھ ہے. میں زیادہ کچھ نہ کہے بس اپنی جگہ لیتا ہوں. آپ سب کا شکریہ. بہت ایک سیکنڈ. السلام علیکم. آج حکومت کرناٹک کا حلقے یعنی اقلیتی وبھاگ ادارے کی طرف سے اور کرناٹک اردو اکیڈمی کی طرف سے جو جلسہ اور مشاعرہ کا انتظام کیا گیا ہے, اس کی صدارت سنبھالنے والے ہمارے بزرگ جناب داؤد محسن صاحب, اور ہم تمام کو یہ فخر ہے کہ ہمارے اردو سے محبت رکھنے والے ایک بزرگ جو راجیہ سبھا کرناٹک راجیہ سبھا کا ایک سے لقب سے انعام سے لقب سے اور عزت سے نوازے گئے جناب ظفر صدیقی صاحب, اور یہاں تشریف فرما تمام اردو سے محبت رکھنے والے تمام بزرگ اور یہاں پر تشریف فرما تمام اردو سے محبت رکھنے والے بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں. مجھے ہدایت دی گئی کہ 2 منٹ کے لیے بولے. میں سب سے پہلے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کبھی بھی ہم اپنی زبان سے یہ مت کہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے بلکہ اپنی زبان پر ہرگز کبھی بھی کسی بھی موقع پر کتنے بھی تعداد میں کم ہو, کتنا بھی دیری ہوئی ہو, ان سے بھی جلسے میں کہیں بھی آپ بیٹھے ہو, اپنے زبان پہ یہ الفاظ استعمال مت کریے کہ
ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کیونکہ میں ایسا ایک وقت ایک مجمع میں ایک میٹنگ میں بیٹھے سے پہلے ایک لفظ ایسا استعمال کرے ایک بزرگ کہ بھئی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. وہ بولے سو چند ہفتے کے بعد وہ اللہ کے پیارے ہو گئے. نہیں یہ ہنسنے کی بات نہیں. یہ جب ہمارے اور ایک بزرگ کو میں سنایا کہ بھئی ایسا انہوں گزر گئے ان کو وہ بات یاد آئی کہ بھئی وقت ایسا بولے تھے کہ بھئی ہمارے پاس وقت نہیں ہے, مجھے جلدی ہے, کہیں جلدی میں جانا ہے. ایسا وقت یہ لفظ استعمال کرو, یہ مت کہو کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور میں جب آگے یہاں پہ بیٹھا, شروع میں تعداد کم تھی, صرف مایوسی کی باتیں سنتا تھا کہ ابھی لوگ نہیں, تعداد نہیں ہے. مایوسی بھی ہمارے واسطے ایمان کا حصہ نہیں ہے. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں, سب سے پہلے میں حکومت کرناٹک کا, ہمارے وزیر حکومت کرناٹک جناب سدرامیا صاحب, ڈپٹی چیف منسٹر سے اردو میں نائب صدر جناب ڈی کے شیو کمار صاحب, جو کہ میرے صدر بھی ہیں, ڈسٹرکٹ کانگریس پریزیڈنٹ ہوں میں, وہ ہمارے کرناٹکا پردیش کانگریس کے صدر بھی ہیں, ان کا اور ہمارے اقلیت کے منسٹر جناب ضمیر احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد 75 سال کے بعد کرناٹک کے اندر اردو اکیڈمی کا آغاز میں لانے کے لیے میں ان تمام حضرات کا, تمام اردو دانوں کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ جو جلسہ ہے 2024 میں اردو اکیڈمی شروع ہوئی, یہ دوسرا سال ہے. یعنی کہ ابھی اردو اکیڈمی کے آغاز میں آ کے اردو اکیڈمی کا پیدائش ہو کے صرف یہ دوسرا سال ہے. اس لیے اسے اور کئی 100 سال, ہزاروں سال سفر طے کرنا ہے. ابھی شروعات ہے. شروعاتی پروگرامز میں, شروعاتی جلسے میں لوگوں کا آنا نہیں آنا یہ کوئی افسوس کی بات نہیں, مایوسی کرنے کی بات نہیں ہے. کہتے ہوئے میں اردو اکیڈمی کے صدر اور اراکین سے گزارش کرتا ہوں کہ اردو اکیڈمی جو ہے ہر ضلع میں, ہر تعلق میں اس کا ایک حلقہ بنے, اور اس میں ہر اردو دان, چاہے اردو زبان مادری زبان بولنے والا ہو یا اردو زبان سیکھا ہو, اسکول میں پڑھا لکھا ہو یا اسکولز میں مدرسے میں پڑھانے والے ہو, مسجد میں امامت کرنے والے ہو, ہر جوت میں بھی اردو سے محبت رکھتا ہے, اردو کا احترام کرتا ہے, اسے ممبر ہونے کا موقع بنائے. یہ نہیں کہ بھئی حکومت کی طرف سے چند لوگوں کو صدر بنا دیے, اردو اکیڈمی کا ممبر بنا دیے, صرف انہی کے ذمہ داری پہ اردو اکیڈمی آگے بڑھانا ہے, اردو زبان کی آگے بڑھانا ہے یا مشاعرے کا انتظام کرنا. مشاعرے کے علاوہ بہت سارے جو ایکٹیویٹیز ہیں اردو کی بہبودی کے لیے, وہ اس کا انتظام کرنے کے لیے اس کا لگاؤ ضروری ہے. اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ داؤد صاحب سے اور ہمارے محسن صاحب سے اور دیگر جو حضرات ہیں یہ سبجیکٹ رکھے اسٹیٹ کمیٹی کے میں, ہر آدمی بھی ضلع یہ ضروری نہیں کہ ڈسٹرکٹ اسٹیٹ لیول میں ممبر ہو, ڈسٹرکٹ لیول, ضلع کے لیول پہ اور تعلق لیول پہ اردو اکیڈمی کے ممبر ضرور ہو, چاہے وہ 10 روپیہ فیس لو, 50 روپیہ فیس لو, 100 روپیہ فیس لو, ہم اس کے ممبر بنے. ممبر بننے سے ہمیں وہ ایک پہلی قدم وہ دائرے میں آ جاتی, اردو اکیڈمی کا ایک حصہ بن جاتی. اس کے واسطے اتنا گزارش کرتے ہوئے میں ایسے مشاعرے, اردو کی تعریف کے بارے میں, اردو کی بہبودی کے بارے میں مجھے بہت سارے جلسے حصہ لینے کا موقع ملا. سب سے پہلے میں اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اردو مدرسے میں داخلہ کرا کر 1 سے لے کے 7ویں کلاس تک اردو کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع مجھے ہمارے والدین نے جو موقع بنا کو دیا, میں سب سے پہلے میں والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمیں یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھئی ہمیں ہمارے بچوں کو ہماری مادری زبان سکھانے کا موقع لے. میں 2 منٹ وقت اگر زیادہ لیا تو بھی میں شاعروں سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت لیتے ہیں, کیونکہ مستقبل میں اگر اردو زبان کو زیادہ
फ़रोग़ मिलना है कि उर्दू हमने उर्दू ज़ुबान से हमें सिर्फ तालीम के साथ साथ अदब और अखलाक भी हमें उर्दू ज़बान से मिली है। आज अगर हमें कुछ इस मुकाम पे पहुँचे हैं तो इसके लिए सबब हमने उर्दू ज़बान में तालीम हासिल करने का मौका मिला। इसलिए हमें बड़ों का एहतराम करना, बुज़ुर्गों का एहतराम करना, सबसे मोहब्बत से पेश आना, ये तमाम अखलाकी अगर चीज़ें हमें मिले हैं तो वो हमारे असातिज़ा की तरफ से मिले। और जज्बा अगर उर्दू का मिला है तो मुशायरों के ज़रिए मिला है। इतना कहते हुए मैं आगे चल के एक गुजारिश करता हूँ कि उर्दू ज़बान के उर्दू एकेडमी के जो है मुशायरे के अलावा हर महीना हर ज़िले में, हर ताल्लुक़ में हर महीना कुछ ना कुछ कार्रवाई से करते रहे। इसमें उर्दू असातिज़ा का हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। उर्दू असातिज़ा से मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए गुजारिश करता हूँ कि अपने आप को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक उर्दू स्कूल्स में उर्दू के मदारसे तक महदूद ना रखें। आपकी ज़िम्मेदारी 9 बजे से 5 बजे के बाद भी उर्दू की ज़िम्मेदारी उर्दू के असातिज़ा की ड्यूटी में है उनकी, और जो रिटायर हुए हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि भी उर्दू से ज़्यादा मोहब्बत लोगों में बांटने की कोशिश करें। इतना कहते हुए मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये उर्दू ज़बान जो है लाखों और करोड़ों की लोगों की मादरी ज़ुबान है। ताक़यामत इसके बोलने वाले, उसके सुनने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले ज़रूर कायम रहेंगे। ये अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। उसके साथ साथ उर्दू ज़बान के जो मोहब्बत बांटने की ज़ुबान है हम तमाम की भी ज़िम्मेदारी है। और इसके साथ साथ मैं उर्दू ज़ुबान वालों से गुजारिश करता हूँ कि दूसरे ज़बान का भी हम जितना हम उर्दू ज़बान से मोहब्बत करते हैं दूसरे ज़बान से भी उतना ही मोहब्बत, उतना ही एहतराम करेंगे तो लोगों के दिलों में उर्दू के ज़रिए भी मोहब्बत पैदा होगी। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और दीगर अम्माइन कराम 6:30 दिया जा चुका था। 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद 8:40 पर यह प्रोग्राम शुरू होता है और 1 घंटा तकरीबन होने आ रहा है। ये इफ्तिताई तकरीब का सिलसिला इख्तिताम पज़ीर है। कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन ये वक्त का तकाज़ा कहिए या हालात का मामला कहिए, कहना नहीं चाहता। गिनती के चंद अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। 40 साल से तकरीबन, मुझे जहाँ तक याद है 40 साल से सैकड़ों नहीं हज़ारों महफ़िलें, सैकड़ों ही कहना चाहिए, सैकड़ों महफ़िलें हमने मुनक़्क़द की हैं और हिंदुस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह हमें आना जाना हुआ है। मैं खुशी का इजहार करूं या मेरी मेहनत एक हफ़्ता भर की जद्दोजहद का रोना रो, उसके ताल्लुक़ से मैं कुछ नहीं कहता। मैं समझ रहा था कि इस तारीख़ी शहर में एक तारीख़ी प्रोग्राम होगा, लेकिन यकीन मानिए कि तारीख़ी प्रोग्राम ही हुआ। आप जिन मानों में ले सकते हैं लेकिन मैं इसे ज़िंदगी का तारीख़ी प्रोग्राम ही करार दूंगा, क्योंकि तारीख़ में इस तरह का प्रोग्राम मैंने नहीं देखा। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ये हमारा अलमिया कहिए या सानिया कहिए या कुछ भी कहिए कि उर्दू असातिज़ा इस तरह की तकारीब में नहीं आते। उर्दू वालिदैन के ताल्लुक़ से मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि हम असातिज़ा बरादरी से शिकायत करते हैं, उमूमन हमें शिकायत होती है और शिकायत भी बजा है।
शिकायत नहीं बल्कि हकीकत है, वो लोग उसे हकीकत का वो शिकायत कहते हैं। एक मिसाल देता हूँ, मैं तकरीर करने नहीं खड़ा हुआ हूँ, अगर बोलने लग जाऊँ तो 2 घंटे बोलेंगे हम इंशाअल्लाह, सब वैसे ही है। एक दिन MLC साहब अब्दुल जब्बार साहब, हमारे कायद जो माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं कर्नाटक स्टेट के, उनके पास बैठा हुआ था। 2 टीचर्स आए, उन्होंने पते की बात कर रहा हूँ, टीचर्स आए, दावणगेरे ज़िले की बात कर रहा हूँ, ख़ास लोग बैठे हुए थे, 3-4 लोग, मैं था और एक साहब थे, उसके साथ 2 टीचर्स आते ही आकर एक रूम का ग्रांट की अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, एक रूम के लिए ग्रांट। मैंने उनसे पूछा स्ट्रेंथ कितना है, उन्होंने कहा 7 बच्चे हैं, 7 ओनली 07। उर्दू स्कूल की हालत। कमरे मैंने पूछा 3 कमरे हैं। टीचर्स मैंने पूछा 3 टीचर्स हैं, उनको 4था कमरा चाहिए 7 बच्चों को पढ़ाने के लिए। अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने उनसे कहा अगर मैं MLC की जगह होता तो उठाकर बाहर भेज देता आपको। उनसे पहले मैंने ही कहा यह हालत है। इसकी वजूहात क्या हैं सब जानते हैं, इसलिए कि हम उर्दू के लिए इस तरह के महफिलों में हम कहते हैं ग्राउंड लेवल जो काम करना है, रूट लेवल पर बुनियादें मुस्तहकम करने के लिए उर्दू स्कूलों में हर एक स्कूल में KMDC SDMC कमेटी होती है, वहाँ फाइट करके SDMC के सदर वगैरह होते हैं, लेकिन स्कूलों की जो हालत होती है और वहाँ की जो तालीम होती है उस पर गौर नहीं किया जाता, और वहाँ की स्ट्रेंथ यानी तालिब इल्मों की तादाद बढ़ाने के लिए जो कोशिश करनी है वो नहीं होती। इसलिए हमारे वालिदैन उर्दू स्कूलों से नाला होकर गैर उर्दू मदारिस का रुख करने पर आमादा हैं। आज मैं और इकबाल हज़रत ने हर मुमकिन कोशिश की कि ये मैसेज इसके पीछे, और ये मैसेज गली मोहल्लों तक पहुँचे, हर एक सोशल मीडिया पर, और तमाम मसाजिद का ऐलान, तमाम मसाजिद में कल ऐलान हुआ, उसके बावजूद आज यहाँ पर है। जो भी है गनीमत है, मैं आपको सलाम करता हूँ, आप हमारी इस महफिल में शिरकत फरमाएं। लिहाजा मैंने ज़्यादा ही शायद कहा, मैं इस मौके पर जितने भी लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, जितने भी अहबाब हैं, शोरा इकराम, मैंने सेलेक्टेड शोरा का इंतखाब करके, रियासत के मशहूर और मारूफ शोरा का इंतखाब करके आज की महफिल सजाई थी। जितने कम ही सही लुत्फ़ उठाने की गरज से आप आए हैं, मैं दूर दूर से हमारे शोरा इकराम सफ़र करके 10-10, 12-15 घंटे सफ़र करके आए हुए हैं, 15 घंटे सफ़र करके। मैं उनको उस मुसाफत की सोहबतें झेलने पर सलाम करता हूँ, और इस तारीख़ी शहर में आपकी तारीख़ दर्ज करने का शुक्रिया अदा करता हूँ। गुलबर्गे से ये आए हैं, आनी सिद्दीकी बेंगलुरु से आए हैं, और भटकल से रायचूर से सुबह 9 बजे निकलकर सुबह 8 बजे डॉक्टर इफ्तिखार शकील वगैरह आए, हमारे दावणगेरे से, और तमाम इलाक़ों से जितने भी शोरा को हमने मदद किया था सब आए हैं। मैं आप शोरा इकराम का और तमाम स्टेज पर जितने भी मुअज़्ज़िज़ मेहमानान हैं उन तमाम का सदारती खिताब के साथ ही एज़ ए कन्वीनियर आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। तमाम अहबाब का शुक्रिया। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप चले, सर आप यहीं पर बैठे रहें। अब बाकायदा तौर पर मुशायरे का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। ये महफिल भी इसके ड्राइवर कहिए नाज़िम मुशायरा, इससे ले जाने वाले हमारे आलमी शोहरत याफ्ता हर जगह या सामने कम टीवी पर ज़्यादा होते हैं शफीक आबिदी मोहतरम, मेरी गुजारिश पर वो आज की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए रज़ामंद हुए हैं। मैं बहुत ही मुअद्दिबाना इल्तिमास करता हूँ उनके अदब व एहतराम के साथ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। वकील साहब
रायचूर, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मोहम्मद आबिदुल्ला अतहर शिमोगा से तशरीफ़ फरमाई, उनसे गुजारिश है कि वो शाह नशीन पर तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर फरजाना फरा भटकल से जिनका ताल्लुक़ है, वो दूर की मुसाफत तय करके यहाँ आई हुई हैं, मैं उनसे कर्नाटक उर्दू अकेडमी की जानिब से इल्तिमास करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। सरखाजी सैयद खमरुद्दीन खमर हरियर दावनगेरे, उनसे गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मोहम्मद गौसपीर हमदर्द, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। साकिब जुनेदी, उनसे गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। साकिब जुनेदी जो कुर्ची से जिनका ताल्लुक़ है बेलगाम ज़िले महाराष्ट्र बॉर्डर कुर्ची से उनका ताल्लुक़ है, वो इन दिनों बहुत ही ज़ोर चल रहे हैं। सैयद अजीज़ुर रहमान शाहिद साहब, गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। मुजाहिद खान मुजाहिद, वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। अब्दुल मुनाफ ज़ख्मी चित्रदुर्गा और अब्दुल मुनाफ ज़ख्मी और अब्दुल समद खान एहसास, उनसे भी गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। अब मैं तमाम का खैर मकदम करता हूँ कर्नाटक उर्दू अकेडमी की जानिब से, तमाम का ये कि तमाम शोरा इकराम का और तमाम मुहिब्बान उर्दू का, जितने भी सामान्य इकराम हैं और हमायदीन शहर हैं, तमाम का फिर एक मरतबा इस महफिल मुशायरा में खैर मकदम करता हूँ। और अगली कार्रवाई के लिए मैं जनाब शफीक आबिदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मुशायरे की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दें। मुझे कुर्सी देते हैं कभी काम पे, मुझे भी करते कुर्सी काम पे लेते वहाँ से बोला मेरे वे सब चलता है, ये नड़ी देते अल्लाह जाए चलो मर। ये बार बार निकालने का तो नहीं है ना? ये बार बार निकालने का ही है। फायदा क्या है? नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़े बयां, नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़े बयां, जो निहायत रहम वाला है बड़ा ही मेहरबान। शब उर्दू अदब के परवानों, बुजुर्गों की तहजीब के मुहाफिजों, शहर चित्रदुर्गा जो तारीखी शहर है, उर्दू ज़बान के तय अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो गोकाक कमीशन रिपोर्ट जब आई थी तो उस वक्त आवाज़ उठाने वाले दो शहर थे, उसमें एक दावनगिरा था, एक चित्रदुर्गा था। लेकिन यहाँ मुशायरे कोई नई रिवायत नहीं है। मुझे याद है सन 2000 में पहली मरतबा मुझे सैफुद्दीन साहब मरहूम MLA चित्रदुर्गा लेके आए थे। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद का एक मुशायरा हुआ था। उसके बाद ताजपीर साहब जो हमारे मोहतरम सियासी कायद हैं, उन्होंने टीपू सुल्तान शादी महल के इफ्तिताही इजलास में एक नातिया मुशायरा मुनक्किद किया था 2002 में, और 2000 से लेकर आज तक मैं कई मुशायरों में आपके दरमियान आ चुका हूँ, आप लोग मुझे सुन भी चुके हैं। और बतौर रुकने कर्नाटक उर्दू अकेडमी मैंने यहाँ पर बड़े कुलहीन मुशायरे मुनक्किद किए। कभी नाउमीदी अच्छी चीज़ नहीं है, उम्मीद के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं अक्सर व बेशतर यही कहता हूँ कि उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से जो मायूसी का इजहार किया जाता है, यही सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी है। इसलिए कि मायूसी जो है हमें नुज़ूल की तरफ राग़िब कर देती है। तो खैर ये बातें होती रहेंगी, मुझे तकरीर नहीं करना है। मुझे दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, एक बड़ी फहरिस्त मेरे सामने है। 6:30 बजे का मुशायरा जो है वो 10 बजे के करीब शुरू हो रहा है। तो मुझे एहसास है कि शोरा इकराम से मुशायरा चलता है, नाज़िम से मुशायरा नहीं चलता।
اور منتخب شورا اکرام کی یہاں پر آمد ہوئی ہے، اور بالخصوص صدر مشاعرہ محترم المقام ڈاکٹر قدیر احمد سربرو صاحب جو ہے یہاں پر تشریف فرما ہیں اور بہترین اور منتخب شورا اکرام ہیں. تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ان 4 مصروں کے ساتھ میں اپنی بات کا آغاز کرنے کو جی چاہتا ہے کہ لب معطر ہیں جس کی خوشبو سے، لب معطر ہیں جس کی خوشبو سے، فکر رقصاں ہے اس کے جادو سے. لب معطر ہیں جس کی خوشبو سے، فکر رقصاں ہے اس کے جادو سے. میرا سارا زمانہ عاشق ہے، میرا سارا زمانہ عاشق ہے. عشق جب سے ہوا ہے اردو سے، میرا سارا زمانہ عاشق ہے. عشق جب سے ہوا ہے اردو سے. اردو زبان کے تئیں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں یہاں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا. آپ بخوبی واقف ہیں، باشعور لوگ ہیں. تو آئیے حضرات اب مشاعرے کی طرف چلتے ہیں کہ میر و غالب کی پیروی کر لیں. میر و غالب کی پیروی کر لیں، آؤ کچھ دیر شاعری کر لیں. میر و غالب کی پیروی کر لیں، آؤ کچھ دیر شاعری کر لیں. ڈوب کر عشق کے سمندر میں، ڈوب کر عشق کے سمندر میں کچھ ادا رسم بندگی کر لیں. تو رسم بندگی ادا کرنے کے لیے عشق کے سمندر میں غوطہ ہونا ضروری ہوتا ہے. اور یہ وہ عشق نہیں جو آج کل آپ لوگ واٹس ایپ یا فیس بک یا انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں، وہ عشق نہیں. عشق حقیقی کی دنیا الگ ہی دنیا ہے. وہاں پہنچنے کے لیے عرفان کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے. شعور، میں اکثر و بیشتر یہ کہتا ہوں کہ شعور اور شعر میں درمیان میں عین کو امتیاز حاصل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں علم و عرفان شامل ہے. اگر شعور کا عین ہٹا دیا جائے تو جہالت کا شور بن جائے گا. اگر شعر کا عین ہٹا دیا جائے تو شر بن جائے گا. تو ہمیں باشعور بن کر جو ہے اس دنیا کو آگے لے جانا ہے. تو آئیے میں سب سے پہلے آپ کی بہترین اور باذوق سماعتوں کے حوالے آپ ہی کے جانے پہچانے شاعر جناب عبدالصمد خان احساس صاحب تو میزبان شورا نہیں ہے. ارے واہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ مہمان شورا نہیں ہے اور میزبان شورا نہیں ہے. یہ پہلا اتفاق ہے. میں نے جہاں مشاعروں میں گیا ہوں وہاں پر پہلے میزبان ہوتے ہیں، بعد میں جو ہے مہمان. اچھا نہیں، میزبان تو ہو سکتے ہیں بھائی، اس لیے کہ وہ مقامی ہیں تو میزبان ہیں. خیر چلیے مقامی شاعر ہی کہہ دیتے ہیں. معذرت چاہتا ہوں اگر زبان میں اگر یہ اختلاف ہے کہ میزبان کون ہوتا ہے، تو میں نے اس زبان کا تو کبھی مطالعہ نہیں کیا ہے. تو آئیے اب میں آپ کے بہترین اور باذوق سماعتوں کے حوالے جناب مجاہد خان مجاہد صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب مجاہد خان مجاہد نئی نسل کے اچھی فکر کے شاعر ہیں. جہاں تک میرا خیال ہے ان کا تعلق چنگیری سے ہے اور داونگرے میں کچھ سکونت پذیر ہیں. میں نے ان کا پورا جو ہے کلام دیکھا. ہریور میں ہیں. اچھا تو لیکن چنگیری سے شاید آپ کا تعلق ہے. جی اس لیے کہ میں ان سے پہلے بھی ملاقات کیا، ان کا کلام میں دیکھ چکا ہوں اور ان کا پورا مجموعہ دیکھ چکا ہوں. لہذا میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بہترین کلام سے اس خوبصورت سے مشاعرے کا آغاز کریں. آپ پوری بیداری کے ساتھ جو ہے تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں. جناب مجاہد خان مجاہد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیج پہ موجود تمام معزز مہمان ذی احتشام شعراء اکرام اور آپ تمام محبان اردو کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے صدر مشاعرہ سے میں اپنا کلام سنانے کی اجازت چاہتا ہوں. کچھ اشعار اور ایک غزل حاضر کر رہا ہوں. مجلس وحدانیت میں ہے صدارت عشق کی،
मजलिस वहदानियत में है सदारत इश्क की, महफिल ज़िक्र मोहब्बत में निज़ामत इश्क की। जब हुए आजिज़ ज़मीन व आसमां इस बोझ से, जब हुए आजिज़ ज़मीन व आसमां इस बोझ से, रब ने बख्शी क़ल्ब आदम को अमानत इश्क की। इश्क तेरा मोनिसो हमदम रहेगा हश्र तक, ऐ मुजाहिद गर तू कर लेगा हिफाजत इश्क की। शुक्रिया। आज उस बुत से हम कलाम हुआ, मकसद ज़िंदगी तमाम हुआ। आज उस बुत से हम कलाम हुआ, मकसद ज़िंदगी तमाम हुआ। एक झूठे की ताजपोशी में कितने सच्चों का क़त्ल-ए-आम हुआ। आज उस बुत से हम कलाम हुआ, आज उस बुत से हम कलाम हुआ, मकसद ज़िंदगी तमाम हुआ। एक झूठे की ताजपोशी में कितने सच्चों का क़त्ल-ए-आम हुआ। ज़ाहिदों को मैकशी से क्या गरज, ज़ाहिदों को मैकशी से क्या गरज, अक्ल को दीवानगी से क्या गरज। ख़ादिर मुतलक़ खुदाए ला शरीक ज़ात वहदत को दूरी से क्या गरज। दोस्तों, हम साकिनाने अर्ज़ को ज़ुहल ज़ोहरा मुश्तरी से क्या गरज। क़ैद हूँ कुंजे क़फ़स में ऐ बहार, मुझको तेरी दिलकशी से क्या गरज। ज़हन के गोशे से यादों की महक जाती नहीं, ज़हन के गोशे से यादों की महक जाती नहीं, कोई सूरत तेरी सूरत सी नज़र आती नहीं। शुक्रिया। आग भट्टी में रियाज़त की सदा दहकी रहे, आग भट्टी में रियाज़त की सदा दहकी रहे, हर कसाफत नफ्स की जब तक पिघल जाती नहीं। ऐ मुजाहिद जिसका दिल है महव ज़िक्र इसमें ज़ात, ऐ मुजाहिद जिसका दिल है महव ज़िक्र इसमें ज़ात, रूह उसकी मौत की सख्ती से घबराती नहीं। गज़ल हाजिर कर रहा हूँ। फूल में खुशबू हवा में रागनी बाकी न हो, फूल में खुशबू हवा में रागनी बाकी न हो, तू न होता इन बिसाते आशिकी बाकी न हो। है यहाँ किरदार मेरा मिस्ल मौजे तहनशी, है यहाँ किरदार मेरा मिस्ल मौजे तहनशी, मिस्ल मौजे तहनशी। गर नुमाया हो तो हुस्न मानवी बाकी न हो, गर नुमाया हो तो हुस्न मानवी बाकी न हो। मुनकशिफ उस दिल पे हो असरार ज़ाते लम यज़ल, असरार ज़ाते लम यज़ल, जिसमें एक लम्हे को भी रंगे दुई बाकी न हो, जिसमें एक लम्हे को भी रंगे दुई बाकी न हो। शुक्रिया। इश्क कर देता है बंदे को खुदा का हमनशी, इश्क कर देता है बंदे को खुदा का हमनशी, खुदा का हमनशी। खुद में देखोगे खुदा को गर खुदी बाकी न हो, खुद में देखोगे खुदा को गर खुदी बाकी न हो। सल्तनत कौनैन की भी हाथ आ जाए तो क्या,
सल्तनत कौनैन की भी हाथ आ जाए तो क्या, हाथ आ जाए तो क्या, क़ल्ब में गर गंज फ़ख्रे हैदरी बाक़ी न हो, क़ल्ब में गर गंज फ़ख्रे हैदरी बाक़ी न हो। मुख्तार दस्ते साक़ी से मुजाहिद गर न पैमाना मिले, दस्ते साक़ी से मुजाहिद गर न पैमाना मिले, गर न पैमाना मिले, बज़्म रिंदा में सुरूरे मैं कशी बाक़ी न हो, बज़्म रिंदा में सुरूरे मैं कशी बाक़ी न हो, फूल में खुशबू हवा में रागनी बाक़ी न हो, तू न हो तो इंबिसाते आशिक़ी बाक़ी न हो। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने सच्चों का कत्लेआम हुआ। क्या वाकई बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मैंने तंजिया शेर कहा मुजाहिद साहब ने, मैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो उनकी खिदमत में जो है कर्नाटक, देखिए मैं यहाँ पर बात बताता चलूँ कि आज का ये अजीम शान मुशायरा डॉक्टर दाऊद मोहसिन साहब जो बैकवर्ड एक बेहतरीन अफसरानगार है, नेशनल काउंसिल प्रमोशन फॉर उर्दू लैंग्वेज के भी रुकन के तौर पर इन्होंने खिदमत अंजाम दिए और आज कर्नाटक उर्दू अकेडमी में मेंबर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने इससे पहले भी इसी मुकाम पर जो है पिछले साल का मुशायरा अजीम शान मुशायरा मुनक्किद हुआ, उस वक्त जो मजमा जो बेहतरीन मजमा जमा था, लेकिन वक्त की कीमत जो है अपना काम। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली काजी साहब की टीम जो है अकेडमी में आने के बाद 3 साल का कला था, 3 साल के बाद जो है अकेडमी मुतहर्रिक हुई, तो यकीनन बहुत अच्छा काम हो रहा है। सिद्दीकी साहब है और दाऊद मोहसिन साहब है, जफर मोहिद्दीन साहब है, तनवीर अजीम है, नाती अली पर जितने भी उसमें मेंबर्स हैं वो अपने अपने तौर पर जो है कर्नाटक उर्दू अकेडमी में मुतहर्रिक हैं और सबकी सरपरस्ती हमारे और आपके अजीम कायद जनाब टीचर जमील अहमद खान साहब जो है वो अपनी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। हमें उम्मीद है बहुत सारी वाबस्ता है, इंशाअल्लाह चलता रहेगा कि एक झूठे की ताजपोशी पर कितने सच्चों का कत्लेआम हुआ। बहुत ही अच्छा शेर जनाब मुजाहिद खान मुजाहिद साहब ने पेश किया। झूठ हर किसी का झूठ दुनिया में चलता नहीं, इसीलिए किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, किसने कहा मुझे नहीं मालूम, बस इतना कहूंगा कि शेर कह रहा है। जिस शायर ने कहा मैं उसे सलाम करता हूं, उसने कहा कि जो अपने फन में बुलंद आसमान होता है, जो अपने फन में बुलंद आसमान होता है, उसी के झूठ पे सच का गुमान होता है, उसी के झूठ पे सच का गुमान होता है। क्या बात। फिर आज सर पे झूठ के बांधा गया है ताज, फिर आज सर पे झूठ के बांधा गया है ताज, फिर दफन होगा सच नहीं सिक्कों के शहर में। क्या बात, क्या बात। क्यों पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूं मैं अंधों के शहर में। हाय 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 हाय। तो यकीनन शोरा इकराम ने हर मोड़ पर जो है झूठ की तरदीद की है, सच्चाई का साथ किया है, सदाकत की गुफ्तगू की है और किस्बोरिया के खिलाफ बगावत का ऐलान किया है। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपकी बेहतरीन सवातों के हवाले कर रहा हूँ मैं दावणगेरे से तशरीफ लाए हुए बेहतरीन शायर जनाब मुनीर अहमद दिल साहब से कि वो तशरीफ लाए और अपनी दिल की आवाज़ दिलदारों की समातों तक पहुँचाने की
कोशिश करें। आपसे गुजारिश है कि अपनी पूरी बेदारी के साथ जनाब दिल साहब का दिल से इस्तेमाल करें, तालियों के साथ फुल जोर से। और एक गुजारिश ये है कि जहाँ शेर पसंद आए वहाँ वाह न कह सके, आफरीन न कह सके, मरहबा न कह सके, तो कम से कम तालियां बजाकर जो है शायर का दिल रख ले। फुल जोर अंदाज में इस्तेमाल करें जनाब दिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। सामईन हज़रात, आइए एक मतलब दो शेर पहले सुनिए। नई उम्मीद लोगों में जगाना भी जरूरी है। नई उम्मीद लोगों में जगाना भी जरूरी है। नए ख्वाबों की दुनिया को बसाना भी जरूरी है। नई उम्मीद लोगों में जगाना भी जरूरी है। नए ख्वाबों की दुनिया को बसाना भी जरूरी है। ये अहदे नौ के इंसान हैं, तकाज़े भी नए इनके। ये अहदे नौ के इंसान है, तकाज़े भी नए इनके। रविश अपनी वो मसबूखा भुलाना भी जरूरी है। समझना चाहता हूँ ये कैसे लोग हैं जाने कबीले के मेरे आए दिल। ये कैसे लोग हैं जाने कबीले के मेरे आए दिल। इन्हें गफलत की नींदों से जगाना भी जरूरी है। इन्हें गफलत की नींदों से जगाना भी जरूरी है। गजल के कुछ शेर मतलब यूं हुआ है। हाथों से अपना चेहरा छुपाना बहुत हुआ। हाथों से अपना छुपाना बहुत हुआ। छोड़ो भी अब ये जिद के मनाना बहुत हुआ। बहुत हुआ। शेर सुनिए। उसने निकाला खुद से, मर्जी ये उसकी थी। उसने निकाला खुद से, मर्जी उसी की थी। छोटी सी बात का ये फसाना बहुत हुआ। फसाना बहुत हुआ। शिरकत हो चाहूंगा। हालात से वो मेरे वाकिफ ना हो सका। हालात से वो मेरे वाकिफ ना हो सका। गो उससे मेरा मिलना मिलाना बहुत हुआ। अगला शेर है। रहकर भी साथ मेरे वो नजरों से दूर था। रहकर भी साथ मेरे वो नजरों से दूर था। अब आ भी जा ये छुपना छुपाना बहुत हुआ। इस शेर पर खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। जा हमसे दूर आफते जा, हमसे दूर जा। आफते जा, जा हमसे दूर आफते जा, हमसे दूर जा। अब तक हमारे घर तेरा आना बहुत हुआ। आखिरी शेर पर हूँ। अब लाना सा अब दिल ना लाएगा कभी शिकवा जुबान पर। अब दिल ना लाएगा कभी शिकवा जुबान पर। दिल का ये मामला सुनाना बहुत हुआ। मक्ते पर हूँ वाबिस्ता तेरे नाम से जब जब हुआ है दिल। वाबिस्ता तेरे नाम से जब जब हुआ है दिल। बदनामियों का बोझ उठाना बहुत हुआ। नवाजिश नवाजिश यहाँ है रेडी रखी हुई है, रेडी रखी हुई है। चलो चलो चलो। जोड़ को रखा हुआ नहीं लो सही में मेरा में सब
इंसान को सुनने के बाद अगर मैं ये कह दूं तो गलत नहीं कि दिल की तन्हाई का मुझको खुद भी अंदाजा नहीं। दिल की तन्हाई का मुझको खुद भी अंदाजा नहीं। ये कैसा अब लोग किसका नाम पुकारते हैं कि उनका खाली शायरान का ये कैसा घर है जिसका कोई दरवाजा नहीं। अब मैं आपकी व्यक्तिगत समाजों के हवाले में शिकायत करने जा रहा हूँ जिनका ताल्लुक गैरत से और कम शाहजहाइयों से जो समझ की दुनिया में यहाँ है अजीज रहमान का रखियो यहाँ शाहिद का उनका रखियो मैं यहाँ है अजीज। अब नेक्स्ट कौन पुकारते हैं उनका देख लो। अटल कलाम पेश करने की कोशिश करें शुरा का और मैं भी जो है अपना समय रहा हूँ हाल में पुकारने की कोशिश। अगले शायर का नाम मुझे मैं दे तो मैं जो है रख सकता जनाब शफीक अहमदी साहब, मैंने अपने नाम को काफिया बनाया। मतलब बात है यार, दुआ है तुझसे अजीजुर रहमान की। मेरा नाम अजीजुर रहमान, उसे काफिया बना। यार अब दुआ है तुझसे अजीजुर रहमान की, शोहरत हो सारे मुल्क में उर्दू जबान, शोहरत हो सारे मुल्क में उर्दू जबान की। हर शख्स जल रहा है ताज्जुब की आग में, हर शख्स जल रहा है ताज्जुब की आग में। हालत अजीब आज है हिंदुस्तान की, हालत अजीब आज है हिंदुस्तान की। खुद मिट के भी मिटा ना सके उनके दिल का शक, खुद मिट के भी मिटा ना सके उनके दिल का शक। हद हो गई है आपके वहमो गुमान की, हद हो गई है आपके वहमो गुमान की। अरे क्या बात है शायद। वाह वाह, शुक्रिया। मांगी दुआएं रात दिन औरों के वास्ते, मांगी दुआएं रात दिन औरों के वास्ते। मुझको हुई न फिक्र कभी अपने जान की, मुझको हुई न फिक्र कभी अपने जान की। मफ्तार को कम कर देता हूँ। शाहिद खुदा गवाह है इस दौर कुफ्र में, शाहिद खुदा गवाह है इस दौर कुफ्र में। मैं खैर मांगने लगा अपने ईमान की, न जाने वो बोलो ये बोलो। मैं ईमान की बस बस लो लाओ सब बस 7 शेर में बात कर दिया मुख्तसर। चमके चमके बस। आओ जी इधर इधर आओ मुनीर भाई। एक मसला याद आता है कि जहन पर जब भी घेर रहा है का शहर लगता है, जहन पर
जब भी तासुब का जिगर रखता है उसकी हर शान पे तहरीला वाह 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 उसकी हर शान पे तहरीला समर लगता है। तो आइए आजाद, इसी के साथ साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपके हमारे जाने पहचाने शायर और एक अरसे दराज से उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत करने वाले एक बेहतरीन शायर जनाब गौस पीर हमदर्द साहब, जो किसी भी रुख से उर्दू दुनिया में मोहताज तारुफ नहीं, अपनी फ़िक्र के ज़रिए, अपने अशार के ज़रिए, अपने अंदाज़ बयां के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए अपनी एक पहचान रखते हैं। लिहाजा मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें जनाब गौस पीर हमदर्द साहब। क्या हुआ? मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गज़ल का मतला यूँ हुआ है, दिले बीना हो जिसका दिल वो अंधा हो नहीं सकता, दिले बीना हो जिसका दिल वो अंधा हो नहीं सकता, कलामे हक़ी गर सुन ले तो बहरा हो नहीं सकता, गलत गोई जुबां को बेजुबां कर सकती है लेकिन, गलत गोई ज़बां को बेजुबां कर सकती है लेकिन, ज़बां पर जिसके सच हो तो वो गूंगा हो नहीं सकता। ये शेर देखिएगा, जबी तो झुक गई सजदे में अपनी तो बजा लेकिन, जबी तो झुक गई सजदे में अपनी तो बजा लेकिन, झुके ना दिल भी सजदे में तो सजदा हो नहीं सकता। ये शेर देखिएगा, फकत दावे ही हों गर बंदगी के तो है ला हासिल, फकत दावे ही हों गर बंदगी के तो है ला हासिल, करे ना बंदगी ये रब तो बंदा हो नहीं सकता। ये शेर देखिएगा, जरूरी है तिलावत में नजर और दिल की यकसोई, जरूरी है तिलावत में नजर और दिल की यकसोई, कलामे हक का हक वरना तो पूरा हो नहीं सकता। ये शेर देखिएगा, वो पाकीज़ा सिफत मोमिन रहेंगे हश्र में बेशक, वो पाकीज़ा सिफत मोमिन रहेंगे हश्र में बेशक, कफन जिनका किसी सूरत भी मैला हो नहीं सकता। आखिरी शेर है, नहीं इखलास बाहम दोस्ती में तो किसी सूरत, नहीं इखलास बाहम दोस्ती में तो किसी सूरत, मैं उसका हो नहीं सकता वो मेरा हो नहीं सकता, मैं उसका हो नहीं सकता वो मेरा हो नहीं सकता। मक्ता पेश किया है, अगर हमदर्द जिसकी नेकियों में हो रियाकारी, अगर हमदर्द जिसकी नेकियों में
हो रियाकारी, वो बंदा रब की जानिब से चुनिंदा हो नहीं सकता, वो बंदा रब की जानिब से चुनिंदा हो नहीं सकता। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बेहतरीन फिक्र का नतीजा बेहतरीन समाप्तों से हम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन बहुत ही अच्छी तरह से समाप्त रहे थे, हमें बहुत ही स्पीकर की दहलीज पर पहुंचकर कल बात करने जा रहा हूँ जो नई दर्शकता के बेहतरीन जिस प्रकार वो चीज है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शेर कहने का वजन जाता बिल्कुल नज़्में कहना उसका जो है बेहतरीन मसला है। आज शहर में वकील आजम ने कहा था कि मुफलिस से एक चोर बन गया, मुफलिस से एक चोर बन गया हूं, मगर इस भरे बारात से चुनाव मुफलिस से चोर बन गया हूं, मगर इस भरे बारात से चुनाव क्या? वही चीजें यहाँ पर सजी हैं, चीजें उठाकर तो मुफलिस बन गया। तो आधा जैसे जो है अस्सलाम वालेकुम। शहर चित्रदुर्ग में ये मेरी पहली हाज़िरी है। मैं ममनून हूँ आली जनाब दाऊद मोहसिन साहब का और कर्नाटका उर्दू एकेडमी का कि जिन्होंने ये मौका फराहम किया कि आप लोगों से जुड़ सको। अमूमन कि जब सुबह में निकले हुए थे तो ज़हन में कई ख़यालात होते हैं कि इस तरह से सुना जाएगा, उस तरह से सुना जाएगा, लेकिन चूँकि तादाद कम है, लेकिन मैं इस कौल का सहारा ले रहा हूँ कि हक परस्त तादाद में कम लेकिन कदर व मंजिलत में ज़्यादा होते हैं। तो अपने शेरी सफ़र का आगाज़ इस हौसले के साथ कर रहा हूँ कि जो कुछ भी सुनाऊंगा अमूमन पहली बार आपके दयार में पढ़ रहा हूँ। ये गज़लें मैंने कहीं नहीं पढ़ी हैं। ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब रखते हैं। देखिए कि मतला कुछ शेर से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहूँगा कि दीवारों से नजरें हटाओ सो जाओ, दीवारों से नजरें हटाओ सो जाओ, देर हुई अब चांद बुझाओ सो जाओ, दीवारों से नजरें हटाओ सो जाओ, देर हुई अब चांद बुझाओ सो जाओ, दर्द दबाकर रख दो तकिए के नीचे, दर्द दबाकर रख दो तकिए के नीचे, ख्वाब को ओढ़ो जिस्म बिछाओ सो जाओ, दर्द दबाकर रख दो तकिए के नीचे, ख्वाब को ओढ़ो जिस्म बिछाओ सो जाओ। और नींद कहाँ से आएगी सन्नाटे में, नींद कहाँ से आएगी सन्नाटे में, अपने अंदर शोर मचाओ सो जाओ, अपने अंदर शोर मचाओ सो जाओ। देखो कितनी खुश्क हुई है ये आंखें, देखो कितनी खुश्क हुई है ये आंखें, इनको थोड़ा पानी पिलाओ सो जाओ। देखो कितनी खुश्क हुई है ये आंखें, इनको थोड़ा पानी पिलाओ सो जाओ। और उसकी याद में आखिर कब तक जागोगे, उसकी याद में आखिर कब तक जागोगे, साकिब नींद की गोली खाओ सो जाओ।
साकिब नींद की गोली खाओ सो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मोहब्बतों से नवाजा, मेरा सफ़र कामयाब हुआ। आप अपने लिए एक जोरदार तालियां बजाएं। देखिए कि ज़फ़र साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं चाहता था कि एक मेरा अपना शेर है जो ख़ुसूसन जो वो काम कर रहे हैं उनकी नजरें करूं। इसमें इस गज़ल में एक शेर, एक मतलब शेर आपके दयाल में हाजिर करता हूँ, और ख़ासकर मतले के लिए नौजवान नौजवानों से कि ज़फ़र साहब देखें कि हाय तेरी चारों सखियाँ और इन चारों का दुख, हाय तेरी चारों सखियाँ और इन चारों का दुख, चांद की मौजूदगी में कब चमक तारों का दुख। हाय तेरी चारों सखियां और इन चारों का दुख, चांद की मौजूदगी में कब चमक तारों का दुख। जुर्म इतना है मेरा मैं मरकजी किरदार हूं, जुर्म इतना है मेरा मैं मरकजी किरदार हूँ। सो उठाता फिर रहा हूँ सारे किरदारों का दुख, सो उठाता फिर रहा हूँ सारे किरदारों का दुख। तितलियों का रंग, फूलों की हंसी, भौरे का शोर, तितलियों का रंग, फूलों की हंसी, भौरे का शोर, और नजरअंदाज होता शाख पर खालों का दुख, और नजरअंदाज होता शाख पर खालों का दुख। और कोठे की अय्याशियों में लुटने वाले शाह का हुक्म, कोठे की अय्याशियों में लुटने वाले शाह का हुक्म। राग दरबारी में गाया जाए दरबारों का दुख, राग दरबारी में गाया जाए दरबारों का दुख। देखेंगे एक मतलब को शेर, उसके बाद सहमत तमाम कि दिल के आज़ार की जरूरत है, दिल के आज़ार की जरूरत है, हाँ तुम्हें प्यार की जरूरत है, दिल के आज़ार की जरूरत है, हाँ तुम्हें प्यार की जरूरत है। अब तलक दो ही दोस्त थे मेरे, अब तलक दो ही दोस्त हैं मेरे, वैसे तो चार की जरूरत है, वैसे तो चार की जरूरत है। और शहर में अमन चाहता हूं मैं, शहर में अमन चाहता हूं मैं, थोड़े हथियार की जरूरत है, थोड़े हथियार की जरूरत है। और भाइयों का रवैया कहता है, भाइयों का रवैया कहता है, घर में दीवार की जरूरत है, घर में दीवार की जरूरत है। भाइयों का रवैया कहता है, घर में दीवार की जरूरत है। और भीख में ताज दे रहा है कोई, भीख में ताज दे रहा है कोई, मुझको इनकार की जरूरत है। इधर आना नहीं, उधर उधर पास उधर 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 परिंदा फिक्र का ऊंची उड़ान मारता है, परिंदा 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 फिक्र का ऊंची उड़ान मारता है। नई जमीन नया आसमान और नई जमीन और नए आसमान की तलाश में ये आपका शफीक हामिद ले आओ आप लोग भी आप इस बातों को सलाम करते हुए अब मैं उस शायर की दहलीज पर पहुंच रहा हूं जो किसी भी रूप से उर्दू शायरी की दुनिया
दुनिया में वो मोहताज करूँ नहीं। मेरी बात है जनाब सरकारी सैयद कमरुद्दीन कमर साहब, जैसे ही सरकारी का कल हमारे तस्वुर में आता है तो हमारा दुनिया जो है अलग ही किस्म का आ जाता है, लेकिन ये वैसे नहीं बल्कि बहुत ही खूबसूरत किस्म के शायर है। हुजूर बात करें जनाब जो है अस्सलाम वालेकुम। बिला ताखिर 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ और चाहता हूँ वो शुस्तगी के साथ सजाएं सुना गया, वो शुस्तगी के साथ सजाएं सुना गया। ये मिसरा देखिए मौजूद साहब, आगे आने वाला मिसरा देखिए। वो शुस्तगी के साथ सजाएं सुना गया, वो तो दुआ के आयन पे, वो तो दुआ के आयन पे नुक्ता लगा गया, वो तो दुआ के आयन पे नुक्ता लगा गया। कितनी अजीब बात है मरता था मुझ पर वो, कितनी अजीब बात है मरता था मुझ पर वो, दिलबर वो मेरा पास वफा ही भुला गया। मैं गजल गा रहा हूँ, मतलब हाजिर किया है। पा लिया कौनैन मैंने तुमको एक पाने के बाद, पा लिया कौनैन मैंने तुमको एक पाने के बाद, बहरे वस्ल आए हो कितने रोज, बहरे वस्ल आए हो कितने रोज तड़पाने के बाद, बहरे वस्ल आए हो कितने रोज तड़पाने के बाद, तीरगी तन्हाइयों की छट गई है यक बयक, तीरगी तन्हाइयों की छट गई है यक बयक। माह पारा मेरे आंगन में उतर आने के बाद, माह पारा मेरे आंगन में उतर आने के बाद, शेर अर्ज किया है। कर चुके हो नाम मेरे, कर चुके हो नाम मेरे सारी कायनात, अपनी सारी कायनात, कर चुके हो नाम मेरे अपनी सारी कायनात। फासले क्यों, फासले क्यों दरमियाँ, फासले क्यों दरमियाँ हैं इतना समझाने के बाद, फासले क्यों दरमियाँ हैं इतना समझाने के बाद। ये शेर देखिए अर्ज किया है। लम्स की आतिश में जलकर, लम्स की आतिश में जलकर खिल उठा उनका बदन, लम्स की आतिश में जलकर खिल उठा उनका बदन। मेरे इन बेताब बाहों में समा जाने के बाद, मेरे इन बेताब बाहों में समा जाने के बाद। ये शेर देखिए, हम भी शर्मिंदा हैं, हम भी शर्मिंदा हैं, वो भी तो पशेमा हैं बहुत, हम भी शर्मिंदा हैं, वो भी तो पशेमा हैं बहुत। एक खता सरजद हुई, एक खता सरजद हुई चिलमन के उठ जाने के बाद, एक खता सरजद हुई चिलमन के उठ जाने के बाद। ये शेर भी बतौर खास हाजिर किया है। कूद उठी बर्ख पर एक बर्ख कितनी शान से, कूद उठी बर्ख पर एक बर्ख कितनी शान से, दो दहकते बादलों का वस्ल हो जाने के बाद, दो दहकते बादलों का वस्ल हो जाने के बाद। मफ्ते पे आया हूँ, डॉक्टर साहब तवज्जो चाहता हूँ। हाथ से चेहरा छुपाते हैं वो अपना ऐ खमर, हाथ से चेहरा छुपाते हैं वो अपना ऐ खमर। जामे उल्फत मेरे लब से नोश फरमाने के बाद, जामे उल्फत मेरे लब से नोश फरमाने के बाद, पा लिया कौनैन मैंने तुमको एक पाने के बाद, बहरे वस्ल आए हो कितने रोज तड़पाने के बाद।
आदाब बहुत बहुत शुक्रिया बहुत कहाँ है मुझे मालूम है लेकिन ये मुफक्किर का कौल है और घर की जीनत है तुम्हारा मगर औरत का कोई घर नहीं है बड़ी ही बात और घर की जीनत बनती है मगर औरत का कोई घर नहीं बचपन माँ बाप का घर जवानी शोहर का घर बुढ़ापा बच्चों का घर तो फिर औरत का घर था मगर औरत की दिल वो भी अपने एहसास की तर्जुमानी करना चाहती है तारीख के उर्दू गवाह है कि कई शायरात ने अपने निसाई एहसास की तर्जुमानी अपने एहसास के जरिए से और अगर मेरी दिलाना छोड़ दें तो 90 मिनटों में मेरे घंटों में तब्दील हो जाएंगे लेकिन बेहतर नहीं होगी बस मैं 4 मिनट से दावा दे रहा हूँ तो आज मैं बहुत मुकैयद निजाम कर रहा हूँ सिर्फ 4 मिनटों से दावा दे रहा हूँ आपके नसीम नताश तशरीह कहती है कि आपके सावन में बरसते बादलों के बावजूद ये लफ्ज़ को पढ़ो लीजिए आपके सावन में बरसते बादलों के बावजूद शोरज़ारों में जली में बारिशों के बावजूद मुझसे आगे आगे चलती है मेरी तन्हाई मुझसे आगे आगे चलती है मेरी तन्हाइयां मैं हूं तन्हा दोस्तों की महफिलों के बावजूद तो ये तन्हाई का एहसास जो निसाई एहसास होता है यकीनन उसकी तर्जुमानी जो है करने का हक यकीनन जो है शायरात को है तो हमारी हुकूमत की है कि शायर हमारे दरमियान ऐसे ही मौजूद है जो दर्स और तदरीस के पेशे से रहकर खिदमत अंजाम दे रही है लेकिन जब वो शायरी करती है तो ऐसे महसूस होता है कि वाकई निसाई एहसास की तर्जुमानी करने का कोई तो एक है जो कर रहा है हमारी रियासत में भी मेरी मुराद है डॉक्टर फरदाना साहिबा मोहताज तारुफ नहीं इन्होंने मुशावरत की दुनिया में अपने फिक्र फन के जरिए अपना लोहा मनवाया है अभी दौलतुद्दीन साहब कह रहे थे कि शफीक साहब 3 हिस्सों में शायरों को अपने इंटरव्यू में बांट दिए हैं वो मैं बात बताता जरूर कि 3 किस्म के शायर होते हैं ये शायर वो होता है जो सिर्फ अपने तस्वीर शौक के लिए शेयर करता है ये शायर वो होता है जो कारी और सामने दोनों को मुतासिर करता है मगर एक शायर वो भी होता है जो मुशायरों में पैदा होता है मुशायरों में उसे